Study student. In this video, we are going to start the next method of corrosion prevention, that is metal coating. Coating of metal is very useful for protecting the metal from corrosion. Okay. Here in metal coating, we are going to see the coating of two metals. One is coating of more active metals and coating of less active metal. Okay. Coating of more active metal, it is also called anodic coating. It is called the anodic coating. Anodic coating, and whereas coating of less active metal, it is called the cathodic coating. Okay. So in first we are going to start with the coating of more active metal, that is anodic coating. Anodic coating, you can imagine, suppose this is our base metal. So in more एक्टिव मेटल, सपोज दिस इज ऑफ Fe, आयन की पाइपलाइन है ये, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसके ऊपर किसकी कोटिंग देने वाले हैं? मोर एक्टिव मेटल्स. मोर एक्टिव मेटल्स, व्हिच आर द मोर एक्टिव मेटल्स? यू आर नोइंग द मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द above, present at the top of electrochemical series, they are the more active elements. Okay, metals. So इसके ऊपर हम more active metal, that's why it is called the anodic coating. Okay, so first method we are going to start coating of more active metals. Here, coating of more active metals like zinc, aluminium, cadmium protect the base metal from the corrosion. Okay, in this method, base metal act as a cathode. Just now I explained you. Suppose this is the Fe की पाइपलाइन है, आयन की पाइपलाइन है, इसके ऊपर हमने जिंक, एल्यूमिनियम, कैडमियम के दिया, तो ये जो हमारा बेस मेटल है, इट विल एक्ट एज अ कैथोड, और जिसकी कोटिंग दिए है, द कोटिंग मेटल बिकम्स द एनोड. ओके, सो टू मेटल्स बीइंग इन कांटेक्ट विद सराउंडिंग मीडियम फॉर्म गैल्वेनिक सेल. ओके, गैल्वेनिक सेल फॉर्म हो जाएगा, इन विच कैथोड रिमेन्स अनअटैच्ड. ये जो कैथोड है हमारा बेस मेटल है, इस पे करोजन नहीं हो जाएगा, व्हाइल द एनोड गेट corroded. Okay, such protection is known as cathodic protection. For example, coating of zinc on iron. Example is galvanizing. Okay, let us proceed further. Galvanizing. So, what is galvanizing? Galvanizing, it is the process, in which iron or steel, it is protected from corrosion by coating with the thin layer of zinc. Galvanizing. In galvanizing, which coating metal is used? In galvanizing, iron is used. Iron it is coated with the zinc. So galvanizing में कौन सा coating metal use किया जाता है? Zinc it is used for the coating. You can see here. So galvanizing process में स्टील और आयरन की जो भी शीट होती है, उसके ऊपर किसका लेयर दिया जाता है, किसकी कोटिंग दी जाती है? जिंक की. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इन गैल्वेनाइजिंग इट इज परफॉर्म ऑन द यूनिफॉर्म प्लेन सरफेस के ऊपर ही ये गैल्वेनाइजिंग किया जाता है. सो क्या होता है गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस, हम देखेंगे. यू कैन सी हियर, दिस इज आयरन शीट, थिन आयरन शीट है. दिस आयरन शीट को हमें कोट करने का है, galvanizing करने का है. In galvanizing, which metal we are going to use for the coating? Zinc we are going to use. So before to coat with the zinc, first it is washed in the bath of dilute sulfuric acid, which is maintained at 60 to 90 degree Celsius. इस बात में हमें इसको क्लीन करने का है, वॉश करने का है. क्यों वॉश करने का है? तो जो भी ऑयल, ग्रीस, ऑक्साइड लेयर इसके ऊपर जमी हुई है, टू रिमूव दैट वन. ओके, देन इट इज नेक्स्ट वॉश्ड इन दी वॉशिंग बाथ. यहाँ पे वाटर लिया है, वाटर में इसको हम क्लीन करेंगे टू रिमूव द एसिड्स व्हिच इज डिपॉजिटेड ऑन दैट शीट. ओके, देन दिस इट इज कंप्लीटली ड्राइड इन द ड्राइंग चेंबर. ड्राइंग चेंबर आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से हॉट एयर ली जाती है, और these wheels are it is used to support this sheet, iron sheet. और हॉट एयर से क्या हो जाएगी, हमारी थिन शीट पूरी ड्राई हो जाएगी. देन इट इज पास्ड थ्रू दी molten bath of zinc.
which is maintained at, इसके ऊपर भी MCQ में क्वेश्चन पूछे गए। मोल्टन जिंक का जो बात होता है गैल्वेनाइजिंग में, इट इज मेंटेन एट द टेम्परेचर 425 to 460 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये जो मोल्टन जिंक है, इसका जो ऊपर का जो सरफेस है, दैट सरफेस इट इज कवर्ड विद द फ्लक्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फ्लक्स से ये कवर किया जाता है टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस मोल्टन जिंक। ओके, आफ्टर कोटिंग यहाँ पे देख लीजिए, ये शीट ऐसे कंटिन्यूसली पास होते हुए आएगी, ये मोल्टन बाथ ऑफ जिंक इसमें डिप की जाएगी, देन इट इज कंटिन्यूसली ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। सो टू गेट द यूनिफॉर्म कोटिंग, टू रिमूव द एक्सेस कोटिंग, जहाँ पे भी ज्यादा कम ज्यादा डिपॉजिट हुए वो रिमूव करने के लिए we have to pass this iron sheet through the pair of hot rollers. Okay, when you are going to pass through this pair of hot roller, excess जो भी जिंक डिपॉजिट हुआ है वो रिमूव हो जाएगा एंड इट इज कलेक्टेड इन दिस बाथ, इस बाथ में इसको कलेक्ट किया जाएगा। देन दिस यूनिफॉर्मली कोटेड जिंक की जो भी शीट है, गैल्वेनाइज शीट है, इसको GI शीट्स भी बोलते हैं, इट इज देन पास्ड इन द एनीलिंग चेम्बर। ओके, एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू गेट इट एट द, we are going to get the galvanized sheet, GI sheets भी इसको बोलते हैं, galvanized iron sheets आपको मिलेगी। This is the process of galvanizing. Okay, so where it is used, this galvanizing, it is used to protect iron, used for roofing sheets। आपने देखेंगे roofing sheet है, इसको corrugated sheets भी बोलते हैं। Okay, wires, पाइप्स, ये फेंसिंग के लिए जो नेट यूज की जाती है लोहे की, इसके प्रोटेक्शन करने के लिए बोल्ट्स रहेंगे, स्क्रूज, बकेट्स, ओके, टब्स, ऑल दे आर द गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइजेशन किया होता है। गैल्वेनाइजिंग मींस कोटिंग ऑफ व्हिच मेटल, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल। ओके, सो इसका क्या डिस है, ये कहाँ पे नहीं यूज किया जाता। सो गैल्वेनाइज्ड यूटेंसिल्स जो भी है, दे आर नॉट यूज्ड फॉर कुकिंग बिकॉज सोल्युबिलिटी ऑफ जिंक। ओके, ये जो भी GI हुए किए हुए गैल्वेनाइज किए हुए यूटेंसिल्स रहेंगे, बर्तन रहेंगे, हम खाना पकाने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट वन। व्हाई? बिकॉज दिस जिंक इट इज सोल्यूबल इन वेरी डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट से डाइल्यूट एसिड में भी ये क्या है, जिंक सोल्यूबल होता है एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द पॉइजनस कंपाउंड। So that's why galvanized containers or utensils are not used to store the foodstuffs or for the cooking purpose. Okay, so remember what MCQ में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। So you can see here all these are these pipes, ये जो है it is used galvanized steel से। Next, coating of less active metal. One thing I would like to tell you here, यहाँ पे हमने क्या किया है, मोर एक्टिव मेटल का कोटिंग दिया है। सपोज दिस इज योर मेटल, इसके ऊपर हमने किसका कोटिंग दिया है, मोर एक्टिव मेटल का। ओके, सो दिस विल एक्ट एज अ एनोड। ओके, ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा। दिस इफ कोटिंग इज ब्रोकन बाय मींस by any chance, by any accident, if your coating is broken, still it is going to continuously protect your base metal. Okay, यहाँ पे फिल्म ब्रेक हो गई, इमेजिन दैट वन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट एक्सपोज हो जाएगा, ये पार्ट जो है अपना मोर एनोडिक, इट विल एक्ट एज एनोड, मोर एक्टिव एनोड हो जाएगा, एक कैथोड। कोरोजन इसी पार्ट का हो जाएगा, यहाँ पे इट इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट इफ कोटिंग इज ब्रोकन। कोटिंग ब्रेक होने के बाद भी ये कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट करता है, कौन, मोर एक्टिव मेटल की कोटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोटिंग ऑफ लेस एक्टिव मेटल। Less active metal, it protects from the corrosion due to their inactivity. They provide mechanical protection to the base metal. For example, coating of tin in tinning is made to protect iron from corrosion because it is extremely corrosion resistant. Tinning, it is extremely corrosion resistant. The protection by less active metal is satisfactory as long as coating is perfect. Just now I said to you. मोर एक्टिव मेटल की कोटिंग में क्या होता है, कोटिंग ब्रेक होने के बाद भी कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट करता है। बट लेस एक्टिव मेटल में क्या होता है, आपकी कोटिंग ब्रेक हो गई। ओके, आपने यहाँ पे टीन की कोटिंग दी है, यहाँ पे आपका Fe है और यहाँ पे टीन है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, Fe यहाँ पे है, लीड और फिर बाद में टीन। सो इट इज एट द बॉटम, दिस इज अ लेस एक्टिव।
सो ब्रेक हो गई आपकी कोटिंग, यहाँ पे यहाँ का पार्ट एक्सपोज हो गया, तो ये जो पार्ट है इट विल एक्ट एज अ एनोड एंड टिन विल एक्ट एज अ कैथोड एंड कोरोजन immediately start. So in coating of less active metal, it is going to protect your best metal till coating is perfect. जब तक coating perfect है तब तक ये आपके मेटल को प्रोटेक्ट करेगा, बेस्ट मेटल को प्रोटेक्ट करेगा. Okay? A break or crack in coating may facilitate the formation of electrochemical cell, due to which more active base metal undergoes corrosion rapidly. So tinning कैसे किया जाता है? Tinning is the process of coating of tin over the iron sheet or steel articles. Okay? Previous जैसे ही हमें इसको क्लीन करके लेने का है. This is a steel sheet. इसको हमने पहले पिकलिंग किया है. Pickling means treatment with the dilute sulfuric acid to remove oil, grease, oxide layer. Okay? फिर से उसको आपको वॉशिंग बाथ में वाटर में वॉश करने का है, ड्राइंग चेम्बर में ड्राई करने का है. देन यू हैव टू पास दिस जिंक क्लोराइड फ्लक्स में से इस स्टील की शीट को हम पास करेंगे. देन ये जो दिखाई देता है मोल्टन टीन बात है, इसमें आपकी स्टील की शीट आ जाएगी यहाँ पे. ओके, देन इट इज पास्ड थ्रू द पाम ऑयल टू प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन. यहाँ से आपको ये करने का है. यहाँ पे पेयर ऑफ रोलर दिखाई देते हैं टू रिमूव एक्सेस ऑफ टीन कोटेड. देन पाम ऑयल में से, क्योंकि ये हॉट होता है, इमीडिएटली ऑक्साइड होता है, तो हमें पाम ऑयल में से हम पास करेंगे. देन फाइनली यू आर गोइंग टू गेट द टीन प्लेटेड स्टील. Okay, in the previous case we are using the which flux? Ammonium chloride flux we are using in galvanizing, whereas here in tinning we are going to use zinc chloride flux. Okay, next uses or application of this tinning. ये कहाँ पे यूज करते हैं? They are widely used for coating steel, copper, brass and bronze. Okay, इसको कोट करने के लिए टीन यूज किया जाता है. इट इज यूज टू स्टोर फूड स्टफ स्टोर करने के लिए भी हम यूज करते हैं. घी, ऑयल्स, केरोसिन रहेगा, पिकल्स रहेंगे. हाँ, एंड यूज फॉर रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट्स. रेफ्रिजरेटर के जो भी इक्विपमेंट्स है इसके लिए टीनिंग यूज किया जाता है. ओके, और देखा जाए तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है? दैट वन, सपोज यूर ये कॉपर की वायर है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, सो इसको सोल्डरिंग फैसिलिटेट करने के लिए कॉपर के ऊपर टीनिंग की कोटिंग दी जाती है. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ दैट टीनिंग. ओके, सो we'll stop here. In this method we have covered the metallic coatings: coating of more active metal, that is galvanizing; coating of less active metal, tinning. In tinning we are using tin for the coating, and in galvanizing zinc is used for the coating. Okay, galvanizing, it continuously protect your best metal if there is a crack or break in the coating, but in coating of less active metal, that is in tinning, it is going to protect your best metal till coating is perfect. Okay, galvanized containers are not used to store the food stuff, whereas tin containers are used to store the food stuff. Thank you.